Good morning, everyone, and let's go through the BFS, breadth first search algorithm on graph. We have already covered this algorithm. We just remains to have a look at example. But let us recall the entire algorithm quickly so that we can apply it on the given graph example, right? So what is BFS? It actually explores your graph in a breadth manner. So all the adjacents you are going to explore at a time, and then you will pick one by one and go for their adjacents. So input is one graph and you are going to give it a starting vertex. कहाँ से start करना है वो आप दोगे उसको. And then the output will be something, it gives you three outputs, means three things as an output. The first one is distance vector from your source vertex. बाकी की सारी वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या है उसका एक एरे मिलेगा आपको. सो डिस्टेंस वेक्टर. देन इट गिव्स यू द प्रीडिसेसर वेक्टर. सो हर एक वर्टेक्स के पहले कौन सी वर्टेक्स आई थी, द प्रीडिसेसर विद इन योर पाथ. सो इट गिव्स यू द प्रीडिसेसर वेक्टर एरे. And the last one, it gives you the breadth first tree. At the end, finally, it will give you one tree, which also you can traverse to find a path. So these three things will be you will have once you complete this process. Now, how do we do that process? We have to maintain the status of every vertex, whether it is undiscovered, discovered, or finished. So we come up with the idea that we are going to assign some color coding. You can also assign some values 0, 1, and 2. It depends. You just need to finalize it. So what we do is initially we go for setup, initial setup. For every vertex in your graph, source vertex को भूल जाओ because it is the starting point. Source vertex के अलावा जितनी भी vertices हैं आप उसको undiscovered बोलोगे सबसे पहले. So the color is white. You don't know whether you can reach those vertices or not. So distance हो गया infinite. एंड अगर वहां तक पहुंचे ही नहीं हो तो उसका प्रीडिसेसर भी आपको मिलेगा नहीं. सो nil. So for all those vertices we say it is undiscovered white, infinite distance and nil previous vertex. अब सोर्स के लिए बात करते हैं. then we start from the source node itself. So source vertex has a color gray which indicates it is discovered. If we are starting from that vertex itself, then distance for that is 0. वहीं से हम स्टार्ट करने वाले हैं. और अगर वहीं से स्टार्ट करते हो तो उसका प्रीवियस कोई नहीं है. सो प्रीवियस वर्टेक्स ऑफ सोर्स इज nil. सो टिल स्टेप नंबर 7 आपने कुछ इनिशियल सेटअप कर लिया. उसके बाद आप क्या करोगे, आप सोर्स वर्टेक्स से स्टार्ट करके उसकी जितनी भी एडजेसेंट वर्टाइसिस है उसको कंसिडर करोगे. So we have to remember those vertices somewhere, and जिस सीक्वेंस में आप उसको एक्सप्लोर करते हो उसी सीक्वेंस में आप उसको कंसिडर भी करोगे. So same sequence अगर चाहिए then we go for Q. So we need one more Q here. Initially it is empty. खाली Q लेके सबसे पहला स्टेप हम ये करेंगे कि हम अपनी सोर्स वर्टेक्स को Q के अंदर डाल देंगे. So here we complete the initial setup. After this, we go for the iterative process. जब तक आपकी Q खाली नहीं हो जाती आप क्या करते हो, Q से एक वर्टेक्स उठाओगे, उसकी सारी एडजेसेंट वर्टाइसिस को चेक करोगे. अगर वो एडजेसेंट वर्टेक्स अभी भी अनडिस्कवर्ड है तो हम उसे डिस्कवर करेंगे, मतलब ग्रे करो. बिकॉज यू जंप वंस, आपने वो डिस्कवर किया तो प्रेजेंट आपकी जो लेंथ थी +1 आपको डिस्टेंस मिलेगा. एंड वो नई वर्टेक्स पे आप कहां से पहुंचे हो, यू से, तो दैट विल बी द प्रीवियस वर्टेक्स. एंड देन जो भी एक्सप्लोर किया उसको वापस क्यू के अंदर डाल दो. इंसर्ट दैट newly explored vertex in Q.
तो ये वाला प्रोसेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, जितनी एडजेसेंट वर्टाइसिस हैं सबके लिए इतना काम करो। नाउ व्हेन यू आर डन विथ ऑल एडजेसेंट वर्टाइसिस, तो आप बोलोगे कि भाई यू का काम खत्म, यू की जितनी एडजेसेंट वर्टाइसिस थी मैंने सभी देख ली हैं, देन आई एम डन विथ यू। तो यू को फिनिश कर देंगे, वी विल सेट इट्स कलर टू ब्लैक। नाउ दिस इज द प्रोसेस and we are going to apply this process on a given graph. Let us start an example. So consider this is the given graph, undirected graph is given. It's okay, अगर directed graph होता तो भी आप BFS apply कर सकते हो, considering directions. And the source vertex is given S. So this is your source vertex, वहां से आप start करोगे पूरा process. अगर BFS apply करते हैं तो सबसे पहले initialize it, go for the initial setup. Initial setup क्या बोलता है? सोर्स को छोड़ के जितनी भी वर्टाइसिस है उसका कलर व्हाइट, इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड नील प्रीवियस वर्टेक्स। तो जितनी भी वर्टाइसिस हैं उसके लिए आपको एक डिस्टेंस एरे चाहिए, आपको एक प्रीवियस वर्टेक्स का एरे चाहिए, एंड हर एक वर्टेक्स के लिए सेपरेटली उसका स्टेटस कलर चाहिए। आफ्टर दैट यू नीड अ क्यू, खाली क्यू भी चाहिए होगा आपको। सो लेट अस हैव एवरीथिंग एंड लेट अस इनिशियलाइज। सो वी स्टार्ट विथ इनिशियल सेटअप। व्हाट वी विल डू इज, सोर्स को छोड़ के बाकी जितनी भी वर्टाइसिस हैं सबका कलर व्हाइट, डिस्टेंस इनफाइनाइट एंड प्रीवियस वर्टेक्स नील। ओके, नील, नल एंड नील, नथिंग इज, नील मतलब खाली, नल मतलब नथिंग, so both are okay. Now we also display those distances here in the vertex itself just for our conveniency. बाकी हमारे पास dv पूरा वेक्टर है ही। So that is the setup of all the vertices other than source. अब source की बात करें तो source vertex is gray, distance, look, source vertex is gray, distance is 0 and the previous vertex is nil. तो ये setup हो गया source vertex का। Then the next point is you start with empty queue, एक queue ले लिया, and then we insert a source vertex in that queue. तो queue के अंदर source vertex भी आ गया। So this is our initial setup. ये हो गया हमारा initial setup. Now on this part we are going to apply BFS iterative part. मतलब स्टेप नंबर 9 से लेके आगे जो भी करना है वो अब हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। Now let us have white as it is. अब ग्रे नहीं कर सकता तो मैं उसको येलो कर देता हूँ, and when we are done I'm going to have the blue color there. Instead of black I'll go for blue. So that will indicate, okay, this is unexplored, explored or finished. So undiscovered, discovered or finished. Yellow is discovered right now, all others are white, so undiscovered. We have one element in our queue. तो सबसे पहले स्टार्ट होता है क्यू में से डिलीट करो, you will have U. अब U की जितनी भी एडजेसेंट वर्टाइसिस है उसको लिस्ट कर लो V में, all those V which are adjacent to U. मतलब U क्या है? S. तो S की एडजेसेंट कितनी है, कौन कौन सी है? 2, R and W. So for all these adjacent vertices we are going to perform that iterative part. सबसे पहले चेक करो R का स्टेटस क्या है।
अगर वो वाइट है तो उसके लिए प्रोसेस करेंगे, यस इट इज वाइट। अगर वो वाइट है तो सबसे पहले क्या करना है, आर के लिए मेक इट ग्रे, देन अपडेट द डिस्टेंस। सोर्स मतलब एस का जो डिस्टेंस है +1, 0 + 1 मतलब 1, सो आर का डिस्टेंस हो गया 1 इन द टेबल ऑल्सो, एंड आर का प्रीवियस वर्टेक्स कौन बन जाएगा, एस। सो वी अपडेट दैट थिंग एंड देन NQ that vertex V, NQ that vertex, so R को हम फिर से Q के अंदर डाल देंगे। Now when you insert that vertex in a Q, you are done with that process. As of now you are done with that process. तो सेम प्रोसेस आप करोगे W के लिए। चेक द स्टेटस ऑफ W, वाइट, ओके। तो हम आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले उसका स्टेटस चेंज करो, मेक इट ग्रे, देन अपडेट द डिस्टेंस 1, सो W का डिस्टेंस 1 और उसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, S, एंड देन वी add it to the Q, W का काम भी खत्म। Now when you are done with all the adjacent vertices, ये कौन सी adjacent थी, मतलब किसकी adjacent vertices थी, S की, S का काम खत्म। So when you are done with all those processes related to S, we are going to update the status of S finished। S का काम खत्म, उसको finished मतलब ब्लैक कर दो, मैं ब्लू करूंगा यहां पर। So you are done with S, then you repeat the process। Q खाली है, no, so we are going to repeat that process। Q से एक डिलीट करो, क्या मिलेगा, R। R के जितने भी एडजेसेंट है वो लिस्ट आउट करो, V, go for 1 by 1 adjacent vertices। V का स्टेटस white, okay, so we will make its status gray, we will update the distance of V। उसका प्रीवियस कौन है, R, उसका डिस्टेंस था 1, so 1 + 1 becomes 2 here, तो V का टोटल डिस्टेंस हो गया 2 और उसका प्रीवियस वर्टेक्स R। सोर्स स्थित था से manually means how computer will do it, this is what the process computer follows। We as a human can see entire graph in a single shot, computer doesn't understand this graphical figure, it only understands adjacency matrix or adjacency list। तो हम जब adjacent nodes देखते हैं तो वो मैट्रिक्स या लिस्ट से मिलेंगे। So okay, so what is the distance of R, 1, so 1 + 1 actually 2 will be the distance of V, और V का प्रीवियस कौन हो जाएगा, R। so we are done with V, V को Q में डालो, don't forget to insert that V in the Q back, ठीक है। जितने भी एडजेसेंट थे सबके काम खत्म, so we are finished with R, we update the status of R to black। Is your Q empty? No, तो Q से एक एलिमेंट निकालो, W। Find out the adjacent vertices of W, S, T and X। Find out the adjacent vertices of W, W के जितने भी adjacent है सबको ले आओ। Then we start with S और सबसे पहले status check करेंगे, is it white? It is not white। अगर white नहीं है तो भूल जाओ, उसका कोई काम ही नहीं, that's the condition we have written already।
इफ इट इज वाइट तभी हम ये प्रोसेस करेंगे. So S का status is not a white, forget it, go for the next one. T का status, yes it is white, तो प्रोसेस करेंगे. सबसे पहले उसका स्टेटस चेंज करो ग्रे, देन अपडेट इट्स डिस्टेंस. W का डिस्टेंस 1 था तो 1 + 1 becomes 2 here. तो T का डिस्टेंस क्या हो गया? 2, और T का प्रीवियस W, and then you insert T into Q, तब T का काम खत्म. Then we go for X. Status of X white. ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे. Change the status of X to gray. Update the distance. W का distance 1, 1 + 1 becomes 2. So X का distance हो गया 2, and its previous vertex is what? W. And then you insert X into your Q. तो जितनी एडजेसेंट वर्टाइसेस थी सबको कंसीडर कर लिया, मतलब W का काम खत्म. अपडेट द स्टेटस ऑफ W टू ब्लैक. So okay, is your Q empty? No, we will delete an element. क्या मिलेगा? V. Find the adjacent vertices of V. R. एक ही है. R का स्टेटस white है? No, तो R को भूल जाओ. और कोई वर्टाइसिस बाकी? No, तो V का काम खत्म. Make it black. Is your Q empty? No, so we'll delete and we will have T here. Find adjacent vertices of T. W, X and U. It doesn't matter आप इसको कौन से सीक्वेंस में लेते हो, it's okay. XW U लिया, U XW लिया, it's okay, चलेगा. हाँ, you may have some different trees. ब्रेथ फर्स्ट ट्री बदलेंगे अगर आप अलग सीक्वेंस लेते हो. वेल, लेट्स मूव ऑन. सो वी स्टार्ट विद द W वाइट है? नो, भूल जाओ. नेक्स्ट X वाइट है? नो, भूल जाओ. U वाइट है? यस, देन वी चेंज द स्टेटस ऑफ U टू ग्रे. वी अपडेट द डिस्टेंस. अब T से आप U एक्सप्लोर कर रहे हो तो T का डिस्टेंस 2, 2 + 1 becomes 3, तो U का डिस्टेंस हो गया 3 और U का प्रीवियस T, and we will insert U into Q. अब T के सारे एडजेसेंट वर्टाइसेस खत्म. T को फिनिश करो. Is your Q empty? No, we'll take an element from Q. हमें मिलेगा X. Find out adjacent vertices of X. W, T and Y. Go with W. Is it white? No, forget it. Go for T. Is it white? No, forget it. Go for Y. Is it white? Yes. तो उसका स्टेटस चेंज करेंगे, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे and उसका previous vertex X. Insert Y in your Q and then you are done with all the adjacent vertices for X. तो X को हम करेंगे finish. Is your Q empty? No. Delete an element. आपको मिलेगा U. Find out adjacent vertices of U. T and Y. T का स्टेटस white? No, forget it. Go for Y. Y का स्टेटस white? No, forget it. Done with all adjacent vertices. तो U को फिनिश करो. Is your Q empty? No. Delete an element from Q. आपको मिलेगा Y.
Find adjacent vertices for y, x and u. x का status white? No, forget it. u का status white? No, forget it. Done with all adjacent vertices, मतलब y को finish करो. Is your queue empty? Yes. So we will stop our process here. We will stop our process here. So here you have all the distances. You have all the distances from source. S से R जाना है तो distance 1, S से T जाना है तो distance 2, S से U अगर जाना है तो distance 3. So it will give you the distance here. And if you want to find the entire path, तो आप क्या करोगे? ठीक है, अगर आपको मान लो कि y जाना है फ्रॉम सोर्स, तो आप y का प्रीवियस देखोगे, कौन है? x. ओके, x का प्रीवियस कौन है? w. w का प्रीवियस कौन है? सोर्स. मिल गया? सो यू विल बैक ट्रैक दिस प्रोसेस, दिस प्रीवियस वर्टेक्स एरे, एंड यू विल हैव द एंटायर पाथ. डेस्टिनेशन से बैक ट्रैक करते जाओ, प्रीवियस चेक करते जाओ, यू विल हैव योर एंटायर पाथ. जब सोर्स आ जाए आप रुक जाओगे. सो एक्चुअली अगर आप आगे भी बढ़ते हो तो सोर्स का प्रीवियस नील रहेगा. सो दैट एट दैट प्लेस यू विल स्टॉप. सो एस से वाई का पाथ भी मिल जाएगा. एंड व्हेन यू कंसिडर दैट पाथ, आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, आपने कौन सी एजेस कंसिडर की थी. These are the edges you have considered, right? While we were going through this entire process, जब हमने previous vertex decide किया तो आपने edge भी final कर ली. U का previous T है तो T से U का edge आपने consider किया. So finally you have this thing. When everything becomes black, your queue will be empty and you will stop at that place. अगर आप वहीं पे रुक जाते हो, then you have considered these edges. Those two are darkened out. These two edges are not considered. So अगर उसको निकाल देते हो, if you remove those edges which you haven't considered yet, then it gives you tree. It will definitely give you a tree, क्योंकि कोई भी सर्कुलर पाथ, साइक्लिक पाथ, लूप नहीं दिखेगी आपको. So finally you will have breadth first tree, along with that the distance vector and the previous vector. तीनों आउटपुट मिल गए. And we already know how what is the distance vector से मिलेगा. What is the path? हमें पाई v को बैक ट्रैक करना पड़ेगा, तो आपको पाथ भी मिल जाएगा, right? So any confusion till now? Okay, so that was BFS, or breadth first traversal process. Takeaway task. Apply BFS on the given graph. This is directed graph. ध्यान में रखना. Starting from U. Now this is your takeaway task. जब भी टाइम मिले आपका ये एक एग्जाम्पल खुद से परफॉर्म करोगे. Now what can be the question? एग्जाम में क्वेश्चन या तो पूरा अल्गोरिदम लिखने को बोल दे, 4 या 6 मार्क, या फिर एक ग्राफ दे के बोले अप्लाई BFS ऑन दिस. You have to write the entire trace step by step. हर एक स्टेप को आप अलग से ड्रॉ करके, बाजू में टेबल ड्रॉ करके दिखाओगे.
and that's why it goes for either 6 to 8 mark. ज़्यादा मार्क है तो डेफिनेटली लेंदी प्रोसेस रहेगा, एंड यू हैव टू शो दैट एंटायर प्रोसेस के मार्क्स हैं, आंसर के कोई मार्क्स नहीं. अगर प्रोसेस सही है तो आंसर मिलेगा ही. ठीक है, सो दैट्स द BFS. नाउ लेट अस गो and have a look at what is the complexity for this BFS algorithm. Now this is the entire algorithm that we have seen. Up to step number 9 it is initial setup, and starting from step number 10 it is the iterative process. So अगर आप iterative process पे ज़्यादा ध्यान दो, look, one statement, एक सिंपल स्टेटमेंट जो है वो एक CPU साइकिल लेता है एग्जीक्यूट होने के लिए. तो ऐसे पांच स्टेटमेंट हैं तो 5 CPU साइकिल, तो वो तो एक कांस्टेंट नंबर हो गया. एंड यू ऑल नो दैट व्हेन वी गो फॉर बिगर नोटेशन हम कांस्टेंट को निग्लेक्ट करते हैं, राइट? सो व्हाट वी डू इज वी फोकस ऑन इटरेटिव प्रोसेस हियर. यहाँ पे आप इटरेटिव प्रोसेस पे ध्यान दो. यू हैव वन फॉर लूप जो मैक्सिमम जितनी वर्टाइसिस है उतनी बार चलेंगे. हाँ, आप टोटल वर्टाइसिस जो है उसमें से एक सोर्स वर्टेक्स निकाल दो, दैट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस. बट एज वी टॉक्ड, कांस्टेंट को हम निग्लेक्ट करते हैं, सो वी ओनली फोकस ऑन नंबर ऑफ वर्टाइसिस. सो ये वाला जो लूप है आपका, इट विल टेक ऑर्डर ऑफ V टाइम. जितनी वर्टेक्स है उतनी बार चलेगा, सो ऑर्डर ऑफ V. ओके, देन दिस इज द अदर व्हाइल लूप. अब ये लूप पे फोकस करो. जब तक क्यू खाली नहीं होता है तब तक आप ये व्हाइल लूप चलाते हो. तो क्यू खाली कब होगा? जब उसके अंदर जितनी भी वर्टाइसिस ऐड हुई थी वो डिलीट हो जाए. कितनी वर्टाइसिस ऐड होंगी? हर एक वर्टेक्स को एक बार तो आपने क्यू के अंदर डाला ही है. ऑलवेज चेक दैट एंटायर प्रोसेस. एवरी वर्टेक्स हैज बीन इंसर्टेड इन योर क्यू वंस. सो अगर V वर्टेक्स है, अगर V नंबर ऑफ वर्टाइसिस are there, then that while loop is going to be executed V number of times. Order of V, right? It is order of V. Then under that, this is the for loop. Now that for loop is executed for all the adjacent vertices. For all the adjacent vertices, V की जितनी भी adjacent vertices थी उतनी बार ये for loop चलेगी. तो adjacent vertices मिलेंगे कैसे? जब आप एज कवर करोगे तो जितनी एज है उतनी बार ये फॉर लूप चलेगी. 5 एज है तो 5 बार, 10 एजेस है तो 10 बार. ठीक है, सो वी से फॉर ऑल V, हर एक V के लिए उसकी जितनी एजेस थी उतनी बार चलेंगी. बट इंस्टेड ऑफ दिस आप ये भी बोल सकते हो कि टोटल ग्राफ में जितनी एजेस हैं, ग्राफ में टोटल जितनी एजेस हैं, एट द एंड एडजेसेंट भी उतने ही मिलेंगे. अगर पूरे ग्राफ के अंदर टोटल 25 एज है आपके पास, तो ये वाला फॉर लूप 25 टाइम्स ही चलेगा ना. But we are not covering it because it is not a white status. It is not a white status. तो हम वैसे भी उसको neglect ही करते हैं. So the number of edges in your graph, exactly those many times this
while loop is this for loop is going to be executed. And that's why I don't say big O notation, I say theta notation. I already know that exactly the number of edges will give me the adjacent vertices. So inner for loop is going to be executed for theta of E times. Okay? So what will be the total? Order of V अगले वाला, additionally order of V into E, क्योंकि ये nested है, remember it is nested. ठीक है? So this is your total, order of V plus order of V into E. Now edges may be the larger one. 5 वर्टेक्स वाला जो भी अगर आपका ग्राफ है तो उसके अंदर आप 15-20 एज तो आराम से डाल सकते हो. इफ यू वांट टू हैव डेंस ग्राफ में जाते हो तो 25 एज डाल सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कनेक्टिविटी, इफ दैट ग्राफ इज अ कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टिविटी प्रॉपर है, तो V-1 एज तो कम से कम रहेगी. तो नंबर ऑफ एजेस कितनी है? ऑलमोस्ट इक्वल्स टू V, या तो फिर V से काफी ज्यादा. नाउ इन दैट केस व्हाट वी कैन डू हियर इज वी कैन neglect this V. So compared to number of vertices, number of edges are much more there. And then finally what we got is order of V plus E. Now we can do all these we can neglect all these components little bit only when we go for big O notation. That gives you the upper bound only. Okay, so a big O notation, V plus E. V plus E will be the time complexity for BFS. Sorry? Oh, we have seen that part. Upper bound, big O, lower bound, omega, and if this is your actual part, then theta is the moderate part here. Okay, and that in detail you will learn that part when you go for the design and analysis of algorithms. These are the notations for time complexity. What you need to remember right now is just order of V plus E is the time complexity for BFS. थोड़ा बहुत समझ लिया ये कैसे आता है. Actual calculation will be done in semester 5. So that's the BFS process. Next, depth first search. So we want to explore depth. पहले हम depthness check करेंगे. So it explores your edges going out of the most recently discovered vertex. जो सबसे पहले मिला है उसके अंदर भी आप जाओ, तो उसके अंदर जो सबसे मिला है उसके अंदर भी आप जाओ. You explore the depth first. उसका सिबलिंग जो भी था बाद में वापस आके देखेंगे. We'll come back and we'll think about that sibling. So when all the edges of V have been explored, V की जितनी भी edges थी वो explore हो जाएगी. Then we backtrack to explore the edges of the parent vertex. जहां से आपको V मिला था उसकी बाकी की edges बाद में explore करेंगे. पहले V को खत्म कर लो. V को फिनिश करने के बाद ही हम वापस आएंगे और उसका सिबलिंग देखेंगे. So that goes as deep as possible first, right? So what it says, you continue until all the reachable vertices from origin is discovered.
जब तक ओरिजिन से सारी की सारी वर्टेक्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक ये प्रोसेस आप करने वाले हो. अगर नाउ व्हेन यू आर डूइंग दिस थिंग, इफ एनी अनडिस्कवर्ड वर्टेक्स रिमेन्स, मतलब डेप्थ 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 जितना जा सकता था गया, वापस आया, सिबलिंग भी देख लिया. बट व्हाट इफ इट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ और एक वर्टेक्स ऐसी है जहां पे मैं किसी भी तरह से पहुंच नहीं सकता फ्रॉम सोर्स नोड. जहां से मैंने स्टार्ट किया है वहां से उस वर्टेक्स तक पहुंचने के लिए एक भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक भी एज नहीं है. अब ये पॉसिबल तभी है जब आप डायरेक्टेड ग्राफ लेते हो. अनडायरेक्टेड में तो कहीं ना कहीं से पहुंच जाओगे. सो इफ देर इज स्टिल अनडिस्कवर्ड वर्टेक्स, तो जितनी भी अनडिस्कवर्ड बची है उसमें से कोई भी एक उठाओ एंड डू द सेम प्रोसेस. अगर कोई बाकी रह गया तो भाई तू बाकी क्यों रह गया, आ जा, तेरा भी टर्न. तो वहां से कोई भी एक वर्टेक्स पकड़ के यही सेम प्रोसेस वहां से स्टार्ट कर देंगे. પ્રોસેસ કરવાની, બટ એ એકની એક છે તો એના એડજસ્ટન્ટ કોઈ નથી એટલે પાછી પ્રોસેસ અટકી જશે. રાઈટ? સો when you start from that undiscovered vertex, you go for the entire process one more time from that, as considering it as a source. आगे बढ़ो, अगर एडजस्टेंट है तो आगे बढ़ोगे, नहीं है तो वापस वहीं पे रुक जाओगे. सो हाउ इट कैन बी डन, समझ में तो आता है लेकिन वो प्रोसेस कैसे होगा. लेट्स गो फॉर द एल्गोरिथम. Now for this one, your input is a graph. Now that graph can be directed, undirected, doesn't matter. And no source vertex is required here. You can start depth first search from any of the source. कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो. ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन में सोर्स वर्टेक्स दी होगी सो दैट आपका आंसर और एग्जामिनर का आंसर मैच हो. अगर नहीं दिया है देन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वर्टेक्स. सबसे पहला एक स्टेटमेंट लिख दो, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वी एंड देन गो ऑन. सो इन DFS source vertex is not required, you can start from anywhere. Now that is the input. Now what should be the output? So the output for DFS, depth first search, will be the two timestamps. पहले तो दो टाइम स्टैम्प्स रहेंगे. वन इज द डिस्कवरी टाइम एंड द सेकेंड वन इज द फिनिशिंग टाइम. आपकी वर्टेक्स कब डिस्कवर हुई और कब खत्म हुई. when for the first time you have seen that vertex, that will be the discovery time. And when you are done with all its adjacents, when you are done with all possible adjacent, तब आप बोलोगे कि उसका काम खत्म, फिनिश. So that will be the finishing time. ठीक है? So we have two timestamps and it also gives you path. चाहिए at any way we need a path, तो फिर previous predecessor तो चाहिए ही चाहिए. Just like BFS हमें यहाँ पे भी predecessor मिलेगा. So again this is going to give you actually four things: discovery time, finishing time, predecessor, and at the end it gives you the tree. At the end it also gives you the tree. I haven't written here, but it creates depth first tree. Now generally वो tree नहीं, वो forest बनेगा. So it is depth first forest. अगर कोई ऐसा नोड है जहां पे पहुंच नहीं सकते हो देन तो उसका एक सब ट्री बन जाएगा अलग से. सो दैट विल बी फॉरेस्ट. एक से ज्यादा ट्री है देन इट विल बी फॉरेस्ट. सो दैट गिव्स यू डेप्थ फर्स्ट फॉरेस्ट. हाँ, अब अनडिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड, फिनिश्ड जो भी है उसके लिए सेम कलरिंग सिस्टम यूज कर लो, व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक. So this is the input and output. Now how do we do this process? Let us focus on the actual algorithm. सबसे पहले initialization, जो कुछ भी सेटअप करना है कर लो पहले.
सो इनिशियल सेटअप BFS DFS दोनों का सेम है. All the vertices in your graph, okay, go for undiscovered. हर एक का कलर white, ठीक है. हर एक का प्रीवियस वर्टेक्स nil. अभी पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते हैं. सो एवरीथिंग विल बी द प्रीवियस वर्टेक्स इज गोइंग टू बी nil. Now no one has been discovered yet. आप उसको इनफाइनाइट कर सकते हो या फिर खाली रखो. When you start your process, तब आप उसका डिस्कवरी टाइम नोट करोगे. अभी के लिए टाइम कुछ है ही नहीं. Now when I start my process, मेरे लिए टाइम होगा 0. टाइम स्टैम्प 0 से मैं अपनी प्रोसेस स्टार्ट करता हूं. और जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा मेरा टाइम इंक्रीज होता जाएगा. 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड सो ऑन. टाइम विल लीनियरली इंक्रीज एक एक स्टेप. नाउ व्हेन यू डिस्कवर योर वर्टेक्स, उस वक्त जो भी टाइम है वो नोट करेंगे एज अ डिस्कवरी टाइम. व्हेन यू फिनिश योर वर्टेक्स, उस वक्त जो भी टाइम होगा उसको नोट करेंगे एज अ फिनिशिंग टाइम. सो वी स्टार्ट विद टाइम इक्वल्स टू 0, ठीक है. एंड देन हमें क्या करना है? We want to explore our graph in a depth first manner, starting from any vertex. कोई एक vertex पकड़ लो और वहां से start कर लो process. So what we do is we will pick one vertex from a graph. हम एक vertex पकड़ेंगे. अगर उसका status white है, if still it is white, मतलब वो अनडिस्कवर्ड है, तो हम उसको विजिट करने जाएंगे. विल गो एंड विजिट दैट वर्टेक्स इन अ डेप्थ फर्स्ट मैनर. तो उसको विजिट करने जाओ, डेप्थ फर्स्ट मैनर में विजिट करते हो तो वो डेप्थ 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 जाएगा. बैकवर्ड जितने भी है काम खत्म करके वापस आएगा. सो व्हेन वी कम फ्रॉम दिस DFS विजिट, हम कब वापस आएंगे DFS विजिट से? When everything is over. जितने एडजेसेंट पॉसिबल थे डेप्थ फर्स्ट में मैंने सारे के सारे एक्सप्लोर कर लिए. मतलब अगर U से आगे बढ़ा था तो U के डेप्थ में जो कुछ भी था मैंने सब कुछ देख लिया. U के डेप्थ में जो कुछ भी था मैंने सब कुछ देख लिया. Then I will come back from this step. हाँ, अब U से मान लो कि आपने XYZ एक्सप्लोर कर लिए हैं. You will come back. अब ये फोर लूप चलेगा. मान लो कि उसको x मिला, लेकिन x अगर ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुका है तो वो वाइट नहीं रहेगा. सो वी विल स्किप. y मिलेगा, स्किप. z मिलेगा, स्किप. सो वी रन दिस फोर लूप ऑन ऑल द वर्टाइसेस विद इन योर ग्राफ. डेप्थ फर्स्ट मैनर में अगर वो ऑलरेडी एक्सप्लोर हो चुके हैं तो ये फोर लूप में वो निग्लेक्ट हो जाएंगे. स्टिल अगर कोई बच गया है तो उसके लिए ये प्रोसेस चलेगी. ठीक है. मान लो कि कोई अगर बच भी गया है तो ये वाला प्रोसेस उसके लिए आगे बढ़ेगा. दैट्स व्हाई वी नीड दिस फोर लूप. हर एक वर्टेक्स को चेक करना है भाई तू एक्सप्लोर हुआ या नहीं. अगर नहीं तो आजा, तेरा टर्न है. So that's how we consider all the vertices. लेकिन what is this DFS visit? मतलब DFS visit का प्रोसेस क्या है? Now there comes the iterative process. Let us see DFS visit now. एक वर्टेक्स पकड़ के आप DFS visit पे आ गए. ठीक है. You have selected that vertex and you have come here to visit that vertex. ठीक है. जैसे ही उसको एक्सप्लोर किया, चेंज द स्टेटस टू ग्रे. आप एक स्टेप आगे बढ़े हो तो टाइम स्टैम्प अपडेट करो. एंड दैट टाइम बिकम्स द डिस्कवरी टाइम फॉर यू. यू के लिए वो डिस्कवरी टाइम हो जाएगा. देन व्हाट वी डू,
यू के जितने एडजेसेंट हैं, यू के जितने भी एडजेसेंट हैं उसको एक्सप्लोर करने जाओ. सो फॉर ऑल वर्टाइसेस एडजेसेंट टू यू आप उसको एक्सप्लोर करने जाओगे. एक्सप्लोर तभी करोगे अगर वो वर्टेक्स v इज स्टिल अनडिस्कवर्ड, मतलब अगर वो वाइट है तभी हमें वो प्रोसेस करना है. अगर वो वाइट है तो क्या करेंगे? u से आप v पे आ चुके हो. मान लो कि आपके पास v1 और v2 है. आपने पहले स्टार्ट किया v1, v1 इज स्टिल वाइट, तो क्या करेंगे? v1 हमें कहां से मिला है? u से. सो वी विल सेट प्रीडिसेसर फॉर v इक्वल्स टू u. v1 कहां से मिला? u से. प्रीडिसेसर सेट कर लो. अब डेप्थ फर्स्ट तो ये बोलता है कि आप v1 के डेप्थ में जाओगे, और डेप्थ को एक्सप्लोर करने के लिए ही तो हमने ये फंक्शन बनाया dfs विजिट. सो वी विल डू द रिकर्जन, और रिकर्जन जो है वो ये सारा एक्सप्लोर करके जब वापस आएगा तो आपको v2 भी दे देगा स्टैक. ठीक है? सो दैट्स व्हाई व्हाट वी डू हियर इज वी डू द रिकर्सिव कॉल ऑन v. अब v पहले ग्रे होगा, टाइम स्टैम्प बढ़ेगा और उसका डिस्कवरी टाइम सेट होगा v का, मतलब v1 का. एंड देन v1 के जितने भी एडजेसेंट है वो फोर लूप से चलेंगे. सो दैट विल बी द डेप्थ फर्स्ट रिकर्सिव सॉल्यूशन. जब ये रिकर्जन खत्म होगा तो आप DFS से वापस आओगे, मतलब जहां से कॉल हुआ था वहां पे वापस आओगे, और वो वापस जाके बाकी के सिबलिंग को एक्सप्लोर करेगा. सो दिस इज द रिकर्जन. रिकर्जन अगर समझ में आता है तो ये आसानी से समझ जाओगे आप. Now, when this for loop will be terminated, ये for loop कब खत्म होगा? जितने भी एडजेसेंट हैं सारे के सारे डन. मतलब मान लो कि आपने v1, v2, v3, v4 जितने भी थे सब खत्म कर लिए. देन दिस फॉर लूप विल टर्मिनेट. इसका मतलब ये हुआ कि u के सारे एडजेसेंट आपने खत्म कर लिए. देन u इज फिनिश्ड. सो व्हेन यू आर डन विद दैट फॉर लूप आप u को फिनिश करोगे. सेट द कलर टू ब्लैक. अगर फिनिश किया तो फिनिश टाइम भी याद रखना है. इंक्रीज योर टाइम स्टैम्प and then store that updated time to the finishing timestamp, finishing time of u, वहां पे सेव करोगे. so that is DFS. પછી પાછું v1 આવશે, v2 ઉપર જશે, પછી v2 ના ખતમ કરશે જેટલા પણ હશે. એટલે જ રિકર્ઝન. જો રિકર્ઝન ના કરવું હોય, ઇટરેટિવમાં જવું હોય તો અલગથી સ્ટેક લેવું પડશે ટુ રિમેમ્બર ધોઝ પેરેન્ટ્સ એન્ડ સિબલિંગ્સ. Any more questions now? Well, this is the process. This is the DFS algorithm. Let us recall, or let's go through the entire process one more time. Initial setup. सारे वर्टेक्स के लिए जितनी भी वर्टाइसिस है सबको पहले आप अनडिस्कवर्ड और प्रीवियस नील कर दो. And then you'll start your process with timestamp 0. For all the vertices in your graph, आप उसको एक्सप्लोर करने जाओगे if that is still undiscovered. अगर अनडिस्कवर्ड है तो उसको डिस्कवर करने जाओ इन डेप्थ फर्स्ट मैनर. नाउ डेप्थ फर्स्ट मैनर क्या प्रोसेस है? लेट अस हैव अ लुक एट दैट प्रोसेस नाउ. सो व्हेन यू स्टार्ट दिस डेप्थ फर्स्ट प्रोसेस विथ वन वर्टेक्स u, you have discovered, so change the status. उसका डिस्कवरी टाइम स्टैम्प अपडेट करके स्टोर कर लो. एंड देन यू गो फॉर ऑल एडजेसेंट वर्टाइसेस. वो सारी एडजेसेंट वर्टेक्स को हम एक्सप्लोर करेंगे अगर वो वाइट हैं.
We'll go for one by one. सबसे पहले तो वो कहाँ से एक्सप्लोर हुई? U से. So previous U सेट करो. And we want to go for depth first. So we will go for the recursive case here. एक चाइल्ड पकड़ के रिकर्जन में चले जाओ. दूसरा चाइल्ड कब आएगा? जब रिकर्जन से वापस आएंगे. So that goes the depth first. Now this, when you cover all the adjacents, जब सारे एडजेसेंट खत्म हो गए तो U का काम खत्म. चेंज द स्टेटस ऑफ U. अगर U को फिनिश किया तो उसके लिए भी टाइम स्टैम्प सेव करो, फिनिश टाइम, एंड दैट कंप्लीट्स योर एंटायर प्रोसेस. We started with timestamp 0. When we discover U, discovery time was 1. We go for the first child, and when we discover V1, discovery time, timestamp is 2. We go to X1, update the timestamp 3. હવે માની લો કે X1 ના કોઈ ચાઇલ્ડ છે જ નહીં. You finish X, timestamp 4. Finishing time is also updating. So finishing time of X1 is 4. Then you come back to V1. V1 is not finished yet. तो आप आगे जाके X2 को एक्सप्लोर करोगे. When you explore, again update the timestamp. So 5. X2 का कोई चाइल्ड नहीं है, so it is finished. 6. You go and explore X3. So discovery time for X3 is 7. You finish it, so 8. All the children of V1 are done. So we will update the finishing time of V1. That will be 9. So that's how we see discovery time and finish time. Yes, at the end it is creating tree. What I said, BFS हो या DFS हो, रिजल्ट आपको एक ट्री देगा. अब DFS के केस में ये होता है कि यू एक्सप्लोर रिमेनिंग अनडिस्कवर्ड वर्टाइसिस, तो उसका एक सब ट्री अलग से मिलेगा. एंड इन दैट केस वी से DFS विल गिव यू डेप्थ फर्स्ट फॉरेस्ट. एक से ज्यादा सब ट्री मिले तो वो फॉरेस्ट देता है. नाउ दैट प्रोसेस BFS नेवर डज. ब्रेथ फर्स्ट सर्च वो प्रोसेस कभी नहीं करता. तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च लास्ट में आपको ट्री ही देगा. जो वर्टेक्स अनडिस्कवर्ड है भूल जाओ. अनडिस्कवर्ड, अगर डिस्कवरी नहीं हुई तो पता कैसे चलेगा? सो इन टर्म्स ऑफ BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च आपको पाथ देता है विथ डिस्टेंस. अगर डिस्टेंस इनफाइनाइट है तो उसका पाथ नहीं. ओके, सो दिस इज DFS. विल स्टॉप आवर प्रोसेस हियर. आज हमने डेप्थ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम देखा. इन अ नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू अप्लाई डेप्थ फर्स्ट सर्च ऑन a given graph. Now this is directed graph. So in directed graph there may be self loop. Okay, in a directed graph you may have self loop, otherwise there are no self loops. Undirected graph में loop कभी नहीं होता. So that's all for today. Source will be any. We will start this process from any of the source and we apply the DFS in next lecture. So that's all. See you in the next lecture soon.